Good morning students. In today's video, we will discuss conditions and warranties under Sale of Goods Act 1930. इस वीडियो में पहले हम दोनों टर्म्स का मीनिंग देखेंगे, फिर हम उनके डिफरेंस देखेंगे एंड फाइनली वी विल डिस्कस द टर्म कैविट एम्पटर. So to begin with, first of all, the meaning of stipulation, condition and warranty. Stipulation means a representation which forms part of the contract of sale and affects the contract is stipulation. यानी कि ये सेलर के ओपिनियन को शो करती है अबाउट द गुड्स एंड इट हेल्प्स इन इंड्यूस द बायर टू परचेज द गुड्स. According to section 12, subsection 1 of the act, stipulation may be condition or warranty. First we are seeing the meaning of condition, which is defined under section 12 subsection 2 of the act. A stipulation which is most important for formation of the contract of sale is known as condition, whereas warranty is a stipulation which is collateral or at least importance for the formation of the contract of sale is known as warranty. This has been defined in the section 12 subsection 3 of the act. Section 12 subsection 4 of the Sale of Goods Act states that कि एक स्टिपुलेशन कंडीशन होगी या वारंटी होगी, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. नाउ वी विल डिस्कस दीज टू टर्म्स विच आर आवर मेन टॉपिक ऑफ स्टडी टुडे वन बाय वन इन डिटेल. First, conditions. As I told you, conditions are specified under section 12 subsection 2 of the Sale of Goods Act. A condition is a stipulated essential to the main purpose of the contract, breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. A condition in a contract of sale is the stipulation which constitutes the hard core of the contract and is essential to the main purpose of the contract. यानी कि ये एक ऐसी स्टिपुलेशन है, यदि ये फुलफिल नहीं होती तो बायर हैज़ अ राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. काइंड्स ऑफ कंडीशंस की हम बात करें तो दो काइंड्स हैं. वन इज़ एक्सप्रेस कंडीशन, सेकंड इज़ इम्प्लाइड कंडीशन. एक्सप्रेस कंडीशंस वो हैं विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर एग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच मे बी कस्टमाइज्ड. Next is implied conditions. Conditions are said to be employed when the law incorporates their existence as implicit to a contract of sale unless otherwise agreed upon between the parties. तो यानी कि ऐसा मान के चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट करेंगी यदि इसके अगेंस्ट कुछ पार्टीज़ ने एग्री नहीं किया है तो. Both parties shall be bound by the implied conditions, and there are the following 7 types of implied conditions as you can see on your screen. We will discuss these implied conditions in detail in our subsequent slides. Before that, we will discuss about the warranties. Warranties which are described under section 12 subsection 3. जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ए वारंटी इज़ अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड. यानी कि वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है, यदि वो फुलफ़िल नहीं होती तो डैमेज के लिए, लॉस के लिए तो क्लेम किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं किया जा सकता. जैसे कंडीशन की 2 काइंड्स होती हैं, वैसे ही वारंटीज़ की भी 2 काइंड्स होती हैं. फर्स्ट इज़ एक्सप्रेस वारंटीज़, सेकेंड इज़ इम्प्लाइड वारंटीज़. एक्सप्रेस वारंटीज़ हैं जो कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड किए गए हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय दी बोथ दी पार्टीज.
हावेवर इम्प्लाइड वारंटीज़ ऐसी वारंटीज़ हैं जिन्हें लॉ ने इनकॉर्पोरेट किया है इम्प्लिसिटली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्रोवाइडेड दोनों पार्टीज़ ने इसके अगेंस्ट कुछ म्यूचुअली डिसाइड नहीं किया है। देयर आर 3 implied warranties which are visible on your screen. We will discuss these in detail in our subsequent slide. Next, we are looking at the very important part which is about implied conditions and warranties, and normally you find a separate question on this. So we will discuss these one by one. सो इम्प्लाइड कंडीशंस, जैसा कि भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 7 इम्प्लाइड कंडीशंस हैं एंड 3 इम्प्लाइड वारंटीज़ हैं। आपकी स्क्रीन पे 8 हैं, इसमें से एक डुप्लीकेशन है जो भी हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें है हमारी कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए। इट स्टिपुलेट्स दैट जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया तो इसमें इम्प्लाइड कंडीशन है दैट seller has the right to sell the goods and that the ownership of goods will be transferred to the buyer at the time of sale. यदि ऐसा नहीं है, let us say buyer को बाद में पता चलता है that seller was only an agent और उसको right नहीं था goods sell करने का और ownership transfer करने का, तो उस केस में buyer has the right to receive back the price of such goods. Next is condition in case of sale by description under section 15. If goods are to be sold by description, then it is necessary that goods should conform to that description. यदि goods description से match नहीं करते, then buyer has a right to refuse to accept such goods. Next is condition in case of sale by sample under section 17. यदि गुड्स को सैंपल के थ्रू सेल किया जा रहा है तो उसमें इम्प्लाइड कंडीशन ये होती है दैट सारे के सारे गुड्स सैंपल की तरह ही होंगे एंड बायर को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें वो गुड्स सैंपल के गुड्स के साथ कंपेयर कर सके, और उसको ये चांस दिया जाएगा कि यदि कोई लेटेंट डिफेक्ट है, कोई छुपा हुआ डिफेक्ट है जो कि नेक्ड आई से पता नहीं चल रहा, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। फोर्थ जो इसमें आपको विजिबल है स्क्रीन पे, ये सेम है सेकंड एंड थर्ड के लिए, इसलिए आपको कहा गया कि 7 कंडीशंस हैं, ये एक्स्ट्रा एक 8th है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ऑफ द गुड्स सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऐसा माना जाता है दैट प्रिंसिपल ऑफ कैविट एम्पेटर इज एप्लीकेबल, दैट इज बायर हैज़ टू बी बिवेयर वाइल बाइंग दी गुड्स। हालांकि लेटेंट डिफेक्ट्स के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। गुड्स परचेज्ड एज पर देयर डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल शुड बी मर्चेंटेबल। यदि वो मर्चेंटेबल नहीं है तो उस केस में ये बेनिफिट बायर को मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन एज टू होलसमनेस, द गुड्स आर ईटेबल्स। यदि वो खाने वाले गुड्स हैं तो इम्प्लाइड कंडीशन है दैट सच गुड्स आर होलसम एंड आर नॉट इंजूरियस टू हेल्थ टू द कंज्यूमर। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, एक बॉटल ऑफ मिल्क खरीदा गया एंड इट हैड टाइफाइड बैक्टीरिया, जिसको पीने से एक पर्सन की डेथ हो गई, तो उस केस में डैमेज मिलेगा टू दी बायर। नेक्स्ट कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन कैन रिलेट टू एप्रोप्रिएट कस्टम्स और यूसेज ऑफ दी गुड्स। तो यदि ऑर्डर मैन्युफैक्चरर के पास प्लेस किया गया है तो ये माना जाएगा कि गुड्स मैन्युफैक्चरर ने ही बनाए हैं, किसी और से परचेज नहीं किए हैं। So these are the 7 implied conditions. Next we have 3 implied warranties. The warranties which are implicitly in the contract of sale. Like the very first one is warranty as to quiet possession under section 14 subsection B. यानी कि जब बायर ने गुड्स लिए हैं तो उसको उन गुड्स को यूज़ करने का और इन्जॉय करने का राइट है।
नेक्स्ट, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस, सेक्शन 14 सबसेक्शन सी, यानी कि जो गुड्स खरीदे गए हैं दीज आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस, यानी कि इन पे कोई प्लेज नहीं है, मॉर्गेज नहीं है या थर्ड पार्टी का कोई क्लेम नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बायर हैज़ अ राइट टू क्लेम दी डैमेजेस। Next is warranty as to quality or fitness for a particular purpose annexed by uses of trade under section 16 subsection 3, यानी कि यदि गुड्स डिस्ट्रॉयबल हैं और डेंजरस हैं हेल्थ के लिए, इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू forewarn the buyer about such damages. Otherwise, buyer will have right to sue for the damages. So these are the implied conditions and warranties and forms an important question. Next, we are looking at the difference between the condition and warranty. With the discussions held so far for the meaning and the details of conditions and warranty, next we have this difference between condition and warranty. Of course, first difference is that of meaning. Condition जैसा कि आपको बताया, it is a stipulation to the main purpose of the contract, whereas warranty is collateral to the main purpose of the contract. कंडीशन स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, वारंटी स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में। कंडीशन इज अ वाइडर टर्म, वारंटी इज अ स्मॉलर इन इट्स स्कोप। कंडीशन को यदि फुलफिल नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो जाता है, जबकि वारंटी के केस में केवल डैमेजेस के लिए क्लेम मिलता है। कंडीशंस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, a buyer can opt to treat a condition as a warranty and have a recourse to a smaller remedy of claiming compensation only, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एंड ना करके वो डैमेजेस के क्लेम को भी ले सकता है, हालांकि वारंटी को कभी भी कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। Compulsory interchangeability under section 13 subsection 2, where the contract of sale is not severable, that is divisible, the buyer has accepted part goods, the breach of condition is to be compulsorily treated as breach of warranty, हालांकि no such compulsion exists in case of warranty. So these are the main points of difference between condition and warranty. Next we are looking at the situations when condition can be treated as a warranty. It can be voluntary waiver of condition by the buyer, कि वो उसको खुद ही वेव कर दे और एज a warranty एक्सेप्ट कर ले। Voluntary treatment by the buyer, that the breach of condition would be treated as warranty and he would not mind that and will accept the claim to the damages. Where a contract of sale is not divisible, the buyer has accepted the goods wholly or in part, the breach of condition could only be treated as breach of warranty, जैसा कि अभी अपने प्रीवियस स्लाइड में भी इसको डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशंस एंड वारंटीज। नेक्स्ट हम एक छोटा कंसेप्ट कर रहे हैं जिसपे सेपरेट नोट आपको एग्जाम में मिलता है, दैट इज कैविट एम्पटर। कैविट एम्पटर is a fundamental principle of law of sale of goods. It means let the buyer beware. It is the duty of the buyer to be careful while purchasing goods of his requirement, and in the absence of inquiry from the buyer, the seller is not bound to disclose every defect of the goods of which he may be cognizant. तो यानी कि बायर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा while purchasing the goods. However, there are certain exceptions to the doctrine of caveat emptor, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि condition as to quality or fitness for buyer's purpose, where the seller makes a false representation or obtains consent the buyer by fraud. Next, condition as to merchantability, condition as to wholesomeness, and condition implied by the customs or the trade uses. क्वालिटी और फिटनेस, फर्स्ट पॉइंट में हम लेटेंट डिफेक्ट की बात करते हैं। लेटेंट डिफेक्ट सेलर को बताना ज़रूरी है, उसमें बायर बिवेयर का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरीके से यदि बायर की कंसेंट बाय फ्रॉड ली गई है, उस केस में भी कैविट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होता। इसी तरीके से यदि मर्चेंटेबिलिटी नहीं है तब भी कैविट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम इज ट्रू विद दी होलसमनेस, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में मिल्क के केस में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स और ट्रेड यूसेस, ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है जहाँ पे कैविट एम्पटर का डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल नहीं होगा।
So in this video we have discussed about conditions and warranties as well as caveat emptor in a easy to understand manner. Thank you.